الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت پیاری رات ہے، بہت اچھے لمحات ہیں، بہت اچھا موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور آج اس وقت بیٹھ کر ہم جو چیز سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے جب میرے اعمال نامے کھول کر مجھے دکھا دیے جائیں گے. یہ وہ بات ہے کہ جب اس پر سوچتے ہیں نا تو دل اندر سے خود بخود خوش بھی ہو جاتا ہے اور کام بھی جاتا ہے. ہم تھوڑی سی چیزوں پر غور کرتے ہیں، دونوں پہلو دیکھیں گے، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی، کیوں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا چیز ہوگی. اللہ کرے چیزیں ہمیں فائدہ دیں، ہماری زندگی بدلنے کا سبب بنے. نہ بات سننا کوئی فائدہ دیتا ہے، نہ بات کرنا کچھ فائدہ دیتا ہے جب تک انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے. اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے آپ کا بہترین انالیسس کریں تاکہ ہمارا ایسا تزکیہ ہو. جب تجزیہ ہوتا ہے تو تزکیہ بھی ہوتا ہے. اللہ کرے ہم بہترین تزکیہ کر سکیں. تو یہ مبارک رات میں ہم سوچتے ہیں ہمیں اللہ نے نا دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے صحیح کی. ہم تنہا آئے ہیں، تنہا جائیں گے. اللہ کے حضور جواب دہی بھی تنہا کریں گے. جو ہم کریں گے وہی ہم دیکھیں گے. کسی دوسرے کے نام اعمال سے ہمارے نام اعمال میں کچھ نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ جب سورہ مریم میں ہے نا، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہیں. اکیلے کھڑے ہوں گے. اب دیکھیں ہم اکیلے کھڑے ہونے سے کتنا، کہیں پر بھی اکیلے کا ہمیں کیا ساتھ ہوتا ہے، کوئی ساتھ ہو. اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا اقرا کتاب کا، پڑھ اپنا نام اعمال. آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، خود جانتا ہے. دیکھ اپنا نام اعمال. ہماری پوری زندگی کے ہر لمحے کا حساب دنیا کے انسانوں کے سامنے ہوگا. ساری دنیا کے انسان ہوں گے، ہمارا نام اعمال ہوگا. اللہ کہے گا میرے بندوں، زندگی دی تھی، طاقت دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، سب کچھ تو دیا تھا میں نے تمہیں. تم نے اس سے کام لے کر کیا کیا؟ جو کچھ دیا تھا اس سے تم نے کیا کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو آج بھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ وہاں تو بس ہم دیکھیں گے نا، کچھ کر نہیں سکیں گے. اصل میں وقت ہی سرمایہ ہے. دنیا کی جو بھی ہے نا مختصر عارضی ہے، اور دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بوئیں تو کچھ اور کاٹیں کچھ اور. یہ نہیں ہو سکتا. جو بوئیں گے وہی ہمیں وہاں ملے گا. آج یہ دنیا کی زندگی بڑی طویل لگتی ہے. ہم سوچتے ہیں کتنا لمبا وقت ہے نا. ایک کل یعنی آخرت میں انسان کہے گا، کیسے الفاظ سورہ فرقان کے اندر سے انسان ہل جاتا ہے. وہ کہیں گے جب اللہ ان سے پوچھے گا کتنا رہے دنیا میں، تو انسان کہے گا ایک دن یا پھر کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ربانی ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش ہی تم نے اس وقت جانا ہوتا. یعنی یہ تم نے اس وقت سوچا ہوتا، اس وقت تم نے غور کیا ہوتا کہ کتنا ٹھہرے ہو تم. اور ایک دوسری آیت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ دنیا یا حالت موت بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک، پہر کی بات ہے، اتنے مختصر مدت کی. کا مطلب اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ زندگی کی حقیقت ہے کیا. ہم اس میں اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں. تھوڑے سے عرصے کی محنت ہے پیاری بہنوں، اور پھر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا. کتنا پیارا موقع ہوگا، کتنا خوشی کا وقت ہوگا. انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب کا نام اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں ملے. لیکن دنیا میں محنت کرنی ہے، کچھ کرنا ہوگا. کچھ کیے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل سکے گا. اب دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں جو ہماری ہم ان پہلوؤں پر غور کرتے ہیں کہ جن پر ہم نے عمل نہیں کیا، نہیں سوچا. اور پھر ہم دوسری چیزوں پر بھی غور کریں گے جو ہم نے کیا نا، تاکہ ہمارا ہم اپنا جائزہ لے سکیں انشاءاللہ.
उसमें इंसान देखिएगा उसने अल्लाह से कमिटमेंट किया था। कमिटमेंट क्या था? इन्न अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी नफ्स और उनकी माल जन्नत के बदले खरीद ली। हमने अल्लाह से तय कर लिया था, मुआहिदा हो गया था, बात डन हो गई थी। अल्लाह हमारे नफ्स और हमारे माल आपके हैं, बस हमें जन्नत दे दीजिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जन्नत दे दीजिए। अल्लाह से हमने जन्नत मांगी थी। अल्लाह ने कहा ठीक है मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, लेकिन अपने नफ्स और अपने माल मेरे हवाले करने हैं। जो मैं कहूंगा हवाले इस तरह नहीं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अल्लाह ने हमें कहा उसके मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करना, बस इतनी सी बात थी। अब देखना है कि हमने उस मुआहिदे की कितनी पासदारी की। जब वो सब अमाल दिखाए जाएंगे, जब हमारे सामने हमारा नामा अमाल रखा जाएगा, तो हम देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने अपने रब से किया था वो पूरा किया या नहीं। इंसान देखेगा कि वो जो अल्लाह की मर्जी और पसंद छोड़कर हम तो हर जगह अपनी मर्जी चलाते रहे। उसने तो अपना नफ्स देने का वादा लिया था कि मुझे मेरे हवाले करो, जो मैं कहूँ वो फॉलो करो, लेकिन हम तो अपने नफ्स पे अपनी मर्जी चलाते रहे। और ये बड़ी सख्त हदीस आती है, प्यारे नबी ने हमें बताया कि इस जमीन पर पूजे जाने वाले माबूदों में सबसे बड़ा माबूद जो है वो इंसान का अपना नफ्स है। हमारा नफ्स वो चीज है जिसके पीछे हम चलते हैं। नफ्स जो कहता है हम उसको करने के लिए हर वक्त तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो नफ्स जिसके पीछे हम चल रहे होते हैं वो तो हमने अल्लाह को बेच दिया है, लेकिन हम उस बै का उस मुआहिदे को हम भूल जाते हैं। और फिर माल में भी यही होता है कि वो जिस तरह खर्च होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो तो हम तो फजूल खर्ची करके शैतान के भाई बन जाते हैं। उसके माल में अल्लाह ने हकदारों का हक रखा था। हमने सबने दौरे कुरान यकीनन उसमें हम शामिल हुए होंगे, हमने पढ़ा होगा कि हमारे माल में किस किस का हक है, लेकिन हमने उस तरह से हक अदा नहीं किया, है ना। दिल अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह के लिए माल करने अदा खर्च करने के लिए दिल राजी नहीं था, थोड़ा सा दिया और रुक गया, फिर मुतमईन हो गया। ये हमारी दिल की कैफियत थी। फिर एक और पहलू से देखते हैं, इंसान कहेगा, सूरह फुरकान की बड़ी अहम आयत है, जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और क्या कहेगा, या लैतनी मैंने रसूल का साथ दिया होता, काश मैंने रसूल का साथ दिया था, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फला को दोस्त नहीं बना, फुलाना खलीला, मैंने उसे दोस्त नहीं बनाया होता। दो बातें आती हैं हमारे सामने। हमें लगता है कि क्यों ऐसा होगा, ये नामा अमाल हमें उसमें नेकियां नजर नहीं आएंगी, लेकिन हमने रसूल का साथ दिया। रसूल पर सिर्फ ईमान लाने की बात नहीं है, रसूल का साथ देना है। जो रसूल ने किया वो हमें करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, उनकी एक एक चीज को उन्हें अपने लिए उसवा हंसना, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। उन्हें अपने लिए रोल मॉडल बनाना था, जो आपने कहा वो हमें करना था। और फिर उसके बाद जो दोस्त हैं उनको जरूर चेक करना चाहिए, कैसे दोस्त हैं मेरे, जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं या किसी और तरफ ले जाने वाले। मेरे साथ इसकी ये भी एक अहम बात है, अपने बच्चों के लिए भी देखना है कि अल्लाह मेरे बच्चों के कैसे दोस्त हैं। इसलिए किसी ने कहा था जब अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनके दोस्तों के लिए भी दुआ करें, क्योंकि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अच्छे दोस्त होंगे अच्छे रास्ते पे चलेंगे, बुरे दोस्त होंगे बुरे रास्ते पर चलेंगे। नामे अमाल सामने होगा, हसरतें होंगी, काश ये नहीं करता या ये कर लिया होता। इसमें कुफ्फार मुनाफिक तो होंगे ही, लेकिन वो कमजोर ईमान के मुसलमान भी होंगे जिनके नजदीक अल्लाह, उसका रसूल और दीन इस्लाम को संजीदा चीजें ही नहीं थी जिन पर सोचा जाता। इसी तरह के लोग होंगे जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार इलाही में फरियाद करेंगे। क्या कहेंगे, वक़ाल रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूर, मेरी कौम ने क्या किया था, कुरान को निशाना तज़हीक बना लिया। देखिए हमारे प्यारे नबी कह रहे हैं, ये कोई गैर मुस्लिमों की बात नहीं है, काफिरों की बात नहीं है, ये मुसलमानों की बात है। मेरी कौम ने इस कुरान को निशाना तज़हीक आउट ऑफ डेट समझ लिया था, उसे पुश डाल दिया था, तो तवज्जो नहीं की थी। कुरान एक वो किताब है जो इस पूरी जमीन के ऊपर जिसके मकाम की कोई किताब नहीं। ये वो किताब है जो कभी पढ़ने से पुरानी नहीं होती। ये वो किताब है
जो इंसान के दिलों को खोल देने वाली है, किताब दिलों को सुकून रखने वाली है। अब तस्वर करें दरबारे इलाही हुआ, क्या मंजर होगा। मलाइका रूह सब बस्ता खड़े होंगे, कोई नहीं बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे। और इंसान क्या कहेगा, यह मुसलमान जिसके पास कुरान को समझने का टाइम ही नहीं था और उस पर अमल करने की ना कोई तमन्ना थी और ना ख्वाहिश थी। हम क्या कहते रहे, मैं तो बहुत मसरूफ थी, वक्त ही नहीं था। कुरान की क्लास में जाती, बस रमजान में पढ़ लिया, इतना ही काफी है ना। फिर नाम अमाल में देखेंगे रमजान के बाद, जब हम नाम अमाल देखेंगे रमजान के बाद नेकियों ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, फिर नेकियां नजर आएंगी, लोग तड़पेंगे, रोएंगे, काश हमने इस रमजान के बाद भी हम वैसे ही मुसलमान रहते जैसे हम रमजान में थे। जैसे हम रमजान में कुरान के साथ जुड़े थे, हम बाद में भी इससे जुड़े रहते। हम कुरान से पूछते हमें क्या करना है, हम कुरान की रहनुमाई में चलते, हम कुरान के जरिए अपनी जिंदगी में मालूम करते कि हमें क्या क्या काम करने हैं, लेकिन हमने उस काम को उस तरह नहीं किया। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर नो चांस, कुछ नहीं हो सकेगा। हम आज तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह मैं बहुत मसरूफ थी, मेरे पास तो कुछ करने का टाइम नहीं था, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं कह सकेंगे। क्या वो ही ना जानेगा जिसने पैदा किया, अल्लाह ने कहा है ना। तो ये एक बहुत अहम चीज जिस पर हमें सोचने की जरूरत है, कुरान से हमारा ताल्लुक जिंदा ताल्लुक है या नहीं है। फिर दूसरी बात आती है, जब मुसलमान अपना पर्पस ऑफ लाइफ को भूलकर जिंदगी गुजारते हैं, फिर नामे अमाल में क्या चीजें आती हैं। 3 चीजें हैं जो हमने कुरान में पढ़ी। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, अल्लाह ने हमें खलीफा बनाया है। और अल्लाह ने हमें किसने, जिन्होंने इंसानों को पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें, इल्ला लियअबुदून। और फिर अल्लाह ने ये भी कई जगह आयत आती है तो सूरह मुल्क की लिखी, उसने मौत और जिंदगी को इजाद किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें कौन अच्छा अमल करता, आजमाए अल्लाह, इम्तिहान ले। लियब्लुवकुम, अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए पैदा, टेस्ट हो रहा है हमारा, फोकस टेस्ट को करना था। और टेस्ट बंदगी रब का था, और अपने अमल पर से ये साबित करना था कि मैंने खलीफा की अपने रब की नाइब होने की हैसियत और जिम्मेदारी का हक अदा किया। मैंने फोकस किया अपनी जिंदगी को, जो रब ने मुझे काम असाइन किए थे वो सब करने की मैंने भरपूर कोशिश की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं आता है ना, फनसी आदम वलम नजिद लहू अज़मा, आदम भूल गया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम तो भूल कर उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, अल्लाह से तौबा कर ली। लेकिन हमारी जिंदगी बगैर से भूल ही भूल रही, तो बताएं फिर हमारा क्या होगा, है ना। हम अपना नामा अमाल देखेंगे तो फिर सोचेंगे मेरा तो दुनिया में टेस्ट हो रहा था, मेरी जिंदगी तो टेस्ट थी, लेकिन मैंने तो दुनिया में कभी नहीं सोचा, मैं तो मगन रही अपनी जिंदगी में, खुश रही। बेशक हम खुश रहे लेकिन टेस्ट देते हुए खुश रहे, बेशक हम खुश रहे लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो बंदगी रब की है वो अदा करते हुए खुश है। बंदगी रब क्या है, इसमें हर वो काम अल्लाह ने मुझे कहा है जो मेरे लिए फायदेमंद है। अल्लाह ने एक बात मुझे ऐसी नहीं कही जो मेरे लिए गलत हो। लेकिन हम समझते पता नहीं अल्लाह की बातें हमें क्या बना देंगी, हमारे पास तो, हमें तो अपनी दुनिया में हम इतने मसरूफ हैं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है ना। तो ये बहुत अहम बात है, इससे भी हमें फिर हम देखेंगे हमारे नामा अमाल में क्या है। फिर उसके बाद कुछ पहलू हमारे सामने और आते हैं, उन पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। वो बातें क्या है, देखिए अल्लाह ताला पर हमें उनकी भी समझ अता फरमा दे। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद है दुनिया में जिंदगी की हंगामी आराइश है। किसी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से नहीं बढ़नी चाहिए, जब भी बढ़ेगी वहीं पर हम गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए ये माल और औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है और ये हमें अल्लाह ने ही दी है, किसी और ने नहीं दी। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि हमें लगे कि अल्लाह की मोहब्बत तो कम है और माल की और औलाद की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, इसके लिए एक बड़ी प्यारी हदीस आती है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे और उसके अहलो अयाल, माल और सब लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाए। बताए सबसे ज्यादा महबूब हमें अल्लाह होना चाहिए, उसका रसूल होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, इसका मतलब ये कि जब हम ये देखें कि हम जब दीन के रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत सी जगह हमें लग रहा है कि हाँ औलाद की वजह से, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, औलाद तो
औलाद तो हमारी दुनिया की भी जन्नत है और आखिरत की भी जन्नत बन सकती है। लेकिन वो औलाद को हम ना पालते हुए ख्याल करें, ना उसकी तरबियत करते हुए ख्याल करें, और उस औलाद को हम हर जगह करके सोचे नहीं बच्चे हम ये नहीं कर सकते, नहीं फला है, यही होता है ना। और फिर जब कोई बात हो तो हम कहें नहीं भाई हमारे बच्चे जो है ना वो जब वो बड़े हो जाए फिर भी हम फिक्रमंद हो, अब बच्चे ये नहीं चाह रहे, अब हम क्या करें, है ना। हर सूरत में हम अपने सामने एक बैरियर लगा देते हैं, ये हर्डल्स आ जाते हैं। ये हर्डल्स नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो होता है ना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब रखते हैं। अल्लाह से बढ़कर हमें कोई महबूब हो ही नहीं सकता, है ना। सबसे प्यारा मेरा कोई है तो वो अल्लाह है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे अमाल में इखलास है या नहीं। वो भी हमारे जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा अरे मैंने तो बड़ी नेकियां की थी, कहाँ गई, है ना। तो नेकियां कहाँ गई, वो कहीं नहीं गई, वो चूंकि इखलास नहीं था वो जाया हो गई। यानी अल्लाह ताला क़यामत में इस तरह करेगा कि अल्लाह वो अमाल जो उसके लिए नहीं थे उन्हें उठाएगा और जहन्नम में डाल देगा, उनकी तरफ अल्लाह देखेगा भी नहीं, हाथ की तरह उड़ा देगा। वो अल्लाह के लिए किसी काबिल नहीं, तवज्जो करने के काबिल भी नहीं हो। आप देखें आज का सबसे बड़ा मसला अपने इखलास की हिफाजत करना है। जो इखलास जो है ना अल्लाह के लिए हर चीज खालिस कर लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और नफ्स पर सबसे ज्यादा सख्त चीज जो होती है ना वो इखलास है, क्योंकि उसमें नफ्स का कोई हिस्सा नहीं होता। अब अगर हम चाहे एक काम करके अब हम कहें लोग हमारी तारीफ करें, अब किसी ने तारीफ तो की नहीं, अब हमारा दिल हो गया खराब, भाई किसी ने तो तारीफ ही नहीं की, हमें तो किसी ने हमारी बात को, हमने तारीफ के लिए काम किया था, हमने तो अल्लाह के लिए किया था ना। जब हमने तारीफ के लिए किया, लोगों ने अगर तारीफ कर दी तो हमें बस यही बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हमने अल्लाह के नहीं किया तो कोई भी काम, चाहे हमने माल दिया और चाहे हमने कोई भी किसी किस्म का भी काम, हम अल्लाह के नहीं करें, हमें अल्लाह से उसका बदला चाहना, हमें किसी से नहीं चाहना। तो जो खालिस हमारे जो है ना खुलूस से किए हुए होंगे, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक होंगे, वही मैं अपने नाम अमल में देखूंगी। अल्लाह बकिया तो उठाकर अल्लाह ताला अल्लाह उनकी तरफ नजर भी नहीं करेगा। कहीं शो ऑफ है, कहीं गलत नीयत है, नीयत को खालिस रखना ना बड़ी अहम चीज, और नीयत खालिस जो है ना बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए अब हमें एक और बात सोचनी है, जिसको हम सोचेंगे तो हमारी बड़ी अच्छी सलाह होगी कि अल्लाह को चीज मान लाए, अल्लाह से डरो, और शायद ये देखो अपने कल के लिए क्या सामान किया है। देखिए आज जो है वो दुनिया है और कल जो है वो आखिरत है। आखिरत के लिए ये जो एक चीज अगर आपने दिल में सोच लेना आपको बहुत फायदा होगा। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, सोच लेंगे पर मुझे अपना अजर जमा करना है, मुझे आखिरत के लिए अजर जमा करना है। यहाँ मुझे मौका मिल जाए मैं कुछ ना कुछ ऐसी नेकी कर लूं जो मेरे अजर का बाइस हो। अब देखिए अभी हमने कुरान पढ़ा, हमारे जहन में है कि एक होते ना हम एक नेकी करते हैं, वो नेकी करने के बाद ठीक है हमने नेकी कर ली, लेकिन उस नेकी के असरात कहाँ तक गए, कहाँ कहाँ पहुंचे, असल बात इसकी फिक्र है। जितना हमारा खुलूस होगा ना उतनी वो नेकी बढ़ेगी, जितना हम खालिस नियत से अल्लाह की सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करेंगे उतनी वो नेकी करें। तैयारी आज करनी है और उसके लिए हमें आज कोशिश करनी है। अगर आज कोशिश नहीं की तो फिर कल जो है वो हम उस तरह से उस काम को नहीं कर सकेंगे। फिर देखें उसके बाद जो बात आती है हमारी अखलाकियात, है ना। अखलाक के लिहाज से देखें अमाल, वहां पे अखलाक के हवाले से ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। इंसान कहेगा जब वहां अपना नाम अमाल देखेगा, अल्लाह ताला मैंने तो फलां बड़ी अच्छी अच्छी नेकियां की थी, मैंने तो सदका दिया था, मैंने तो लोगों की हेल्प की थी, मैंने और पता नहीं कितने काम किए थे, लेकिन यहाँ तो वो नेकियां है ही नहीं। तो अल्लाह क्या कहेगा कि तुम्हें गीबत की थी ना, वो नेकियां उसको मिल गई, अब तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। अब बताएं हम इतनी मेहनत से नेकी करते हैं और हम दूसरे को दे देते हैं, हम इतनी मेहनत से नेकी करते हैं और किसी की गीबत करके वो हम गीबत करने वाले के हमारे जो हमें बुरा लगा उसी की गीबत कर रहे हैं ना। जब उसकी गीबत करे तो फिर चीजें तो उसके पास पहुंचेंगी, हमारे पास तो नहीं रहेंगी। चलो हसद जो है वो नेकी को जलाकर खाक कर देता है ना। हसद की बात है ना, नेकियां जिस तरह से लकड़ी जो है वो आग उसे जला देती है, इसी तरह हसद नेकियों को जला देता है। और ये हसद जो है ना, इसकी बीमारी जो है ना, ये और लोगों में भी होती है कि औरतों में ज्यादा होती है, बच्चों के हवाले से, फला चीज के हवाले से बहुत। तो ये हसद जो है ना, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बड़ी खराब चीज है, बड़ी तबाहकुन चीज है। पता है जब नेकियां जल के खाक हो जाएंगी तो हमारे पास क्या रहेगा, फिर हमें कुछ नहीं मिला।
پھر امانت داری، جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں، پیارے نبی نے بات کہی ہے۔ اب دیکھا جب ایمان ہی نہیں تو ایمان کے بعد تو ان کی قبول ہی نہیں ہے نا، ہم نے اپنا امانت داری نہیں ہونے کے وجہ سے ایمان خود ہی ضائع کر دیا۔ پھر جھوٹ تو منافقوں کے ہم سب میں شامل ہو گئے ہے نا، نفاق کی علامت ہے بہت بڑا جھوٹ، امانت بھی خیانت بھی منافقت کی علامت ہے، اور اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہے نا، ہم کہاں اپنی نیکیاں دیکھیں گے، پھر ہم تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ پھر جنہوں کے حق مارے تھے ہے نا، اس کی وجہ سے تو میری نیکیاں وہ سب لوٹ لے گئے جن کے میں نے حق مارے تھے میرے حصے میں۔ پھر میں نے دیکھا میرے نامہ اعمال میں مجھے کچھ نظر نہیں آئی، کیونکہ میں نے تو اتنی بڑی غلطی کی تھی۔ پھر اسی طرح ویسے تو میں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتی رہی، لیکن وراثت کی تقسیم کے موقع پہ جب میرا نام عمل گناہ سے بھر گیا، اس لیے کہ وراثت کی غلط تقسیم میں بھی حصے دار تھی، میں نے بھی کہا فلاں فلاں کو مت دو، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو رویہ تھا جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی، بہت بڑا گناہ ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو حسرت ہوگی، غم ہوگا، دکھ ہوگا، لیکن اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ اب ہم دوسرے پہلو سے بھی بات کریں گے، دونوں پہلو سوچیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے ہے نا، ان کا نام ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا گیا گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا نا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال سے اللہ نے ہلکا حساب لینا ہے۔ جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کیا ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، یہ بڑی خوشی کا موقع ہوگا اس کے لیے، شاید وہ دنیا میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا وہ اس وقت خوش ہوگا اپنا نامہ اعمال دیکھ کے، کہ اب تو کام ابھی ہے اور بس اب تو اللہ کا دیدار ملے گا ہے نا، کتنی بڑی بات ہوگی نا، یہ بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی۔ لیکن اب میں تھوڑی سی یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے، تھوڑی سی سوچیں، یہ میں اس طرح کہوں گی کہ لیکن اصل میں یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ سب اپنے بارے میں کہیں کہ یہ میں یہ کر رہی ہوں نا، تاکہ اس میں موٹیویشن پیدا ہو، نیکی کے لیے موٹیویشن ہونا چاہیے نا، کہ میں سوچ رہی ہوں بس، یعنی میں نام عمل میں اپنے دیکھ رہی ہوں نا کہ کیا ہے، آپ سب اپنی سوچے، آپ نام عمل میں دیکھ رہی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں ہے نا، میں نے نماز پڑھی، میں نے سوچا کہ اپنے اللہ کے سامنے کہیں جیسے فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے، میں نے بڑے دل سے اللہ کے لیے نماز پڑھی، جب میں وہاں دیکھوں گی کہ وہ نماز جو میں نے یہ دل کے ساتھ اللہ کے لیے میں پڑھتی رہی، اس کو مجھے کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، میرا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ پھر میں اللہ سے دعا کرتی رہی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اللہ سے دعا کرنا، میں اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی، اللہ سے کہتی تھی میرے اللہ، میرے مالک میری دعائیں سن لے، صرف تو ہی میرا ایک ہے جس کے دربار میں آ سکتی اور اپنی بات رکھ سکتی ہوں۔ لیکن بہت سی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی دل دکھ جاتا تھا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن میں کہتی تھی اللہ نے اس میں میری بہتری رکھی ہوگی۔ میں وہاں دیکھوں گی کہ دعائیں قبول نہیں، ان کا اتنا اجر مجھے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ کپڑا ہٹائے گا اور لگے گا یہ میرے بندے کی نعمت ہے، جب میں وہ دیکھوں گی ہیرے جواہرات، اللہ رب العالمین یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کہے گا جو تم نے دعائیں مانگی تھی جو قبول نہیں ہے اس کا بدلہ ہے۔ میرا دل ہوگا کہ اللہ نے مجھے اتنا اجر دیا اس کا، میں وہاں اپنے نامہ اعمال میں یہ بھی چیز دیکھوں گی۔ پھر میں یہ بھی دیکھوں گی کہ موتی ہے، چھوٹا سا موتی، میری نامہ اعمال کا جو نیکیوں کا پلڑا وہ ہلکا ہو رہا ہے، لیکن وہ جو چھوٹا سا موتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں ڈالے گا وہ نیکیوں کے پلڑے میں تو بڑھ جائے گا، وہ بھاری وزنی ہو جائے گا۔ پتہ چلا وہ چھوٹا سا موتی تو وہ آنسو ہوگا جو میری آنکھوں سے نکلا ہوگا، میں نے اپنے رب کو یاد کیا ہوگا اور اس کے خوف سے میری آنکھوں سے وہ آنسو نکلا، کتنا قیمتی آنسو تھا وہ۔ اور اگر یہ آنسو بہت سارے جمع ہو جائیں گے تو بتائیں نامہ اعمال کتنا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح میں دیکھوں گی، یہ سب آپ اپنے نہیں سوچیے، میں اپنی بات نہیں کری، اب سب بہنوں کی بات ہے، کہ میں دیکھوں گی کہ میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا جب میرے قرآن نے پڑھا، جب اللہ نے مجھے کہا کہ اللہ نے تو ہمیں امت وسط بنایا ہے، جب اللہ نے ہمیں کہا کہ تمہیں نیکی کا حکم دے رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
तामरून बिल मारूफ व तनहान अनिल मुनकर। मेरे दिल में जज्बा पैदा हो गया, मुझे दावा करना है, मुझे नेकी का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, मुझे ये काम करके रहना, मैं करूंगी ये काम। और मैंने करना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा यहाँ पे अल्लाह के यहाँ वो नेमत, मेरी नेकियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई। मैं हैरान रह गई, अल्लाह ताला ये कैसे हो रहा है। अल्लाह ने कहा जब तुम किसी को दावत देती थी, किसी तक बात पहुंचाने के लिए निकलती थी, कोशिश करती थी, फोन करती थी, बात बताती थी और वो उस पर अमल करता था, फिर उसके जरिए जहां तक पहुंचता था वो सारी नेकियां तुम्हारे नामे अमल में डाल दी गई। मुझे इतना खुश हुई, इतनी मुझे खुशी कि अल्लाह ये नेमतें तूने मुझे दी, इतनी ज्यादा। फिर मैंने सोचा मैंने दावा अल्लाह की रहमत से किया था, उसकी तौफीक से किया था, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। फिर मैंने ये भी देखा कि खानदान में विरासत की तकसीम हो रही थी। मेरी बहनों ने कहा कि अम्मी का सारा जेवर हम आपस में बांट लेते हैं। क्या हमारी अम्मी का था ना, हम क्यों भाइयों को दे, फिर तो भाभियां पहन लेंगी। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म ये नहीं है, इसमें सबका हक है, भाइयों का भी है, बहनों का भी है। फिर हमने उसको सही तरह तकसीम कर दिया। जब मैंने देखा वहां पर उसका नतीजा तो मैं हैरान रह गई। वो तो मुझे बड़ा नुमाया नेकियां नजर आई, क्योंकि अल्लाह को बहुत, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें वहां देखना पड़ता। लेकिन जब हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया तो हमें इतनी ज्यादा नेकियां मिल गई। मैं तो हैरान थी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। लेकिन अल्लाह की यानी तस्वर में लाए आपकी, ये हमने किया और हमें इंशाल्लाह करना होगा इंशाल्लाह। फिर इसी तरह कोई शख्स बड़ी मुश्किल में था, मेरे पास भी वसाइल नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे उसकी मदद करनी है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। और मैंने कोशिश करके उसकी मदद की और मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए इस काम को किया। मैंने उस बात को छुपाया, किसी को कहा भी नहीं। वहां पे मैंने देखा अल्लाह क्या, वो फिर मेरे नाम अमल, मेरी नेकी नहीं, उसमें भी बढ़ाए। अल्लाह को इतनी पसंद आई वो चीज कि एक आदमी ने मुश्किल में ये सारे काम किए। फिर इसी तरह जो भी काम मैंने खुलूस से किए, सिर्फ अल्लाह के लिए किए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, मुझे कुछ मतलूब नहीं था। बस औक़ात ऐसा होता है कि इंसान एक काम करता है और वो ये चाहता है कि हाँ सबके सामने कर रहा हूँ, सबको पता चल जाए। जैसे कोई तहज्जुद की नमाज ही पढ़ रहा है, अब वो कहेगा अच्छा मैं लोगों को जाके बताऊं मैं तहज्जुद की नमाज पढ़, नहीं, ये वो नेकी से खुफिया रहना चाहिए। और जो इस तरह की खुफिया नेकी होती है वो खुलूस से भर जाती हैं। लेकिन अगर उनकी तशहीर होती है तो उन्हें खुलूस नहीं रहता। उनका भी वहां मैंने बहुत बड़ा अजर देखा। फिर इसी तरह से एक और चीज है, वो हमारे, अगर हम देखें हमारे लिए बड़ी अहम। अल्लाह ताला ने मुझे भी बच्चे दिए, छोटे मासूम। अब सब अपनी अपनी जगह सोचे, अल्लाह ने आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन वो छोटे होंगे ना पहले, फिर तो बड़े हुए बाद में, किसी के बड़े और किसी के अभी भी छोटे ही होंगे। आज मेरा कभी कभी बच्चे बड़ा तंग करते थे, बड़ा गुस्सा आता था, दिल चाहता था ये मारो, लेकिन मैं रुक जाती थी, नहीं मेरे अल्लाह ने मना किया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, मैं कैसे उठा सकती हूँ। मुझे गुस्सा आता था, मेरा दिल चाहता था मैंने डांटूं, लेकिन मैं रुक जाती थी। प्यारे नबी के पास हजरत अनस 10 साल रहे, उन्हें तो आपने कभी नहीं डांटा, मैं कैसे डांट सकती हूँ। और ये तो जन्नत के फूल हैं, इन फूलों को अगर मैं मस लूंगी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। उसका बदला मैंने इतना बड़ा देखा। जो लोग बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में घर बनाता है जिसका नाम बैतुल फरा होगा, खुशियों का घर। और वो खुशियों का घर देख के इंसान, यानी नेकियों की वजह से हमें हमारा वो खुशियों का घर मिलेगा ना। फिर इसी तरह ये भी बड़ा अहम पहलू है हमारे शौहरों के साथ जो मामलात हैं। मेरे शौहर ने मुझे कोई बात कही, ये आप सब अपने, मैं इसलिए कहती था कि हम जरा सोचे इस बात पे ना, आप सब अपने अपने लिहाज सोचे। बड़ा गुस्सा आया, दिल चाहा मैं, इन्होंने इतनी गलत बात कही है ना, मैं अभी इन्हें 3 बातें सुनाती हूँ। लेकिन मैंने कहा इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है ना। जब अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है तो मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं नहीं कह सकती। मैं खामोश हो गई। ये फायदे मैंने दुनिया में भी देखे, तो आखिरत में उस सब्र का बदला, तो सब्र चाहे किसी भी सूरत में हो, का बदला जन्नत है। अल्लाह को बहुत पसंद है ये अमल, किसी के भी साथ हो, किसी के भी मामले में हो।
इसी तरह गीबत हो रही थी, मैं चुप रही, मैंने लोगों को भी रोकने की कोशिश की। इसी तरह झूठ बोल के मैं बड़े फायदे उठा सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नुकसान उठा लूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। इसी तरह अमानत में खयानत का मामला था, मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। आप सब अपने अपने लिहाज से सोचिए, मैं नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा है कि अमानत में खयानत करने वाला, झूठ बोलने वाला, वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला और लोगों से गुफ्तगू करते हुए अखलाक से गिर जाने वाला शख्स पक्का मुनाफिक है, जिसमें चारों खसलतें। मैं मुनाफिक को मैं अपना नाम नहीं लिखा सकती। मुझे तमन्ना है मैं अपने रब का दीदार करूं, मुझे तमन्ना है मैं अपने रब की जन्नत में जाऊं, मुझे तमन्ना है मैं वैसी बन जाऊं जैसे मेरे रब ने कहा, जैसे मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इसी तरह मेरा दिल चाहता था मैं क्लास अटेंड करूं। मैं क्लास में जाती थी, कभी कभी परेशान भी हो जाती थी, कभी कभी थक भी जाती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं। मैं जॉब करती थी, मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान दुनिया कमाता है, अपनी आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए। मैंने कहा जिस दिन मेरी क्लास होगी मैं उस दिन अपना ऑफ ले लूंगी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े से डॉलर कम होंगे ना, अल्लाह उसके बदले मुझे बरकत देगा। और मैंने ये काम किया। जब मैंने उसका बदला देखा तो मैं हैरान रह गई कि अल्लाह ताला इतना कुछ तूने इसके बदले मुझे दे दिया। मैंने छोटा सा काम किया था, तुझे इतना पसंद आया मेरे मालिक। देखिए इसी तरह नेकियां बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। हम अपने नाम अमाल को जब देखेंगे वहां पर, लेकिन मेरी बहुत प्यारी बहनों, वो हमें आज बनाना है, वो वहां नहीं बना सकेंगे, वहां कोई नेकी का इजाफा नहीं हो सके। जो नेकी का इजाफा होगा वो यहीं पर होगा। तो मैंने थोड़ी सी चीजें आपको बताई हैं। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, उन्होंने जो चीजें हमें बताई है ना, बहुत सारी हैं। हमारे सारे मामलात, हमारे सारे अखलाक, हमारी सारी चीजें उसमें शामिल। लोगों के साथ मोहब्बत करना आपने सिखाया, लोगों के हुकूक अदा करना हमें सिखाया, हमें बताया किससे किस तरह पेश आना चाहिए, हमें बताया बड़ों की इज्जत करो, छोटों से शफकत करो, हमें बताया लोगों के साथ उसने सलूक करो। और अल्लाह ने सबसे बड़ी बात जो बताई, जो सबसे बड़ा हक है, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो। शिर्क इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है कि जो शिर्क लेकर दुनिया से चला गया, अल्लाह से माफी नहीं मांगी, वो तो फिर जन्नत में नहीं जा सकेगी। मैंने ये भी सोचा कि मेरी जिंदगी में कभी कोई शिर्क नहीं आना चाहिए। मैंने उसको बहुत पढ़ा, मैंने समझा, मैंने शिर्क के बारे में मालूमात की, मैंने अल्लाह की 99 सिफात याद की, ताकि मैं उन सिफात के लिहाज से अपने अल्लाह के साथ अपना सारा मामला ठीक करूं। मैं जानूं मेरा रब कैसा है, किन सिफात का मालिक है, मुझे किस तरह रहना अपने रब के साथ, तभी तो मुझे नेमत भरी जन्नतें मिलेंगी। जब मैंने उसमें पढ़ा वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, मैंने सोचा मुझे अपने वालिदैन से एहसान का मामला करना है। फिर मुझे ख्याल आया बहुत दफा मेरी रवैये की वजह से मेरे शौहर का रवैया अपने माँ बाप से बड़ा होता है, मुझे उसकी भी फिक्र करनी। अल्लाह ताला ने मेरी उस चीज की भी इस्लाह करी। इस तरह मैं बहुत सारी चीजें सोचती चली गई, कुरान में आती रही, अपनी जिंदगी में सारी चीजें लाती रही और मेरी नेकियां बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमतों से, अपनी खुसूसी इनायतों से हमें जन्नत में पहुंचा दे। मैं बस आपको एक मिनट ये बात कह देती हूँ, जन्नत है कैसे। देखिए अल्लाह ताला ने कहा है मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत बनाई है। अल्लाह मुंतजिर है हमारा कि हम अच्छे अच्छे अमाल करें। बस हम जिस वक्त दुनिया से चले गए हमारी जन्नत शुरू हो गई। जन्नत मतलब हमें पता चल गया हमें कहाँ जाना है ना। आलम बरज़ख जो है वो ऐसा नहीं कि खाली बस आलम बरज़ख है, उसमें नेक लोगों की अरवा आला इल्लियीन में रखी जाएंगी, वहां उन्हें अल्लाह नेमतें भी देगा। अगर आपने पढ़ा हो साबिक़ून अल-अव्वलून के बारे में, राहुन व रेहानुन, उनके लिए वहां पे अच्छा रिज़्क़ भी होगा। तो अल्लाह ताला ये जो कुछ हमें दे रहा है बहुत, इतनी खूबसूरत जन्नत है, इतनी खूबसूरत जन्नत है, और उससे भी बढ़कर जो खूबसूरत है जिसकी हमें तमन्ना है, मेरे रब का दीदार है। मैं अपने रब को देख सकूं, मैं अपने रब का दीदार कर सकूं। जब हम दीदार करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सब काबिल होकर हम दीदार करें, तो हम कहेंगे अल्लाह बस अब हमें कोई नेमत नहीं चाहिए, बस सिर्फ आपका दीदार। और हम कहेंगे अल्लाह काश हम कुछ ऐसा करके आते कि हमें 2 दफा दीदार हम कर सकते, लेकिन हमने वो नहीं किया। तो चलो हम 1 दफा दीदार करें दिन में, है ना।
تو یہ ساری چیزیں بس پیاری بہنوں، یہ آج کی مبارک رات ہے، کوششیں کر لیں، جد و جہد کر لیں، تھوڑی سی اللہ سے مانگ لیں، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، آئندہ کے عزم باندھے، ارادے باندھے، اور طے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بس اب جنت کے لیے بھرپور کوششیں کر دیں۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، لیکن ساری نہیں ہو سکی ہوں گی، ہو بھی نہیں سکتی اس ٹائم میں، لیکن بہرحال اگر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بقیہ چیزیں ہم خود کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو بہترین عبادتی اطاعت کی توفیق دے، آمین۔ ہم سب کو من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك